So we are starting a very good morning to all my students. Today we are starting with chapter 4th of a snapshot book, Albert Einstein at School by Patrick Pringle. We all know who Albert Einstein was. So Albert Einstein, who was born in 1879 and died in 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from the German school. तो उनको किन रीजंस की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, ये जो एक्चुअली में क्या उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है ना. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जब हम अपने बारे में अपनी बुक खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी होती है जब हमारी लाइफ पे कोई और लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बायोग्राफी. So this is an extract taken from the biography of Einstein written by Patrick Pringle. So in this extract he is describing the reasons why he was expelled from a German school. So all of you please listen attentively. Now it starts. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. What, don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates, only can always look them up in the book. Mr. Braun was speechless for a few minutes. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most of the things up in books? That applies to all the facts that you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all. Oh yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. So यहाँ पे एक वाद विवाद या एक वार्तालाप तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब थोड़ा सा ऐसे लोगों ने ना मतलब अपने व्यूज़ रखे. आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वाटरलू का जो वॉर है वो कब हुआ था उनके बीच में, और आइंस्टीन कह रहा है मुझे एकदम बेबाकी से कि मुझे नहीं पता. तो हिस्ट्री टीचर को गुस्सा आ रहा, बोला क्यों नहीं पता, मैंने इतनी बार बताया फिर भी तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता. तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा. तो वो कह रहा है कि तुमने याद ही नहीं किया. तो कह रहे नहीं किया क्योंकि मैं डेट्स याद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. अगर मुझे कभी भी डेट देखनी है तो मैं अपनी बुक खोल के डेट को देख सकता हूँ. तो वो कह रहा है कि अच्छा, इसका मतलब तो तुम एजुकेशन सिस्टम से ही तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम एजुकेशन सिस्टम को ही सही नहीं मान रहे हो. तो वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं नहीं सोचता कि ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे फैक्ट्स को ऐसे रटाया जाता है वो सही है. दैट इज़ नॉट करेक्ट. दीज वर आइंस्टीन्स व्यूज़. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind to tell the class that Einstein theory of education. ठीक है. अब उसके बाद में ऑफकोर्स टीचर को जो बुरा लगा है तो वो उसको बोल रहा है स्विच ऑफ द फैंस. तो वो उसको बोल रहा है कि अच्छा, इसका मतलब तो तुम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओ अपनी क्लास को. अब कहीं ना कहीं तो वो होता है. एंड ही वॉज फ्लश्ड. I think it's not facts that matter but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. तो वो कह रहे थे फैक्ट से ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है, हमें आइडियाज़ के बारे में पढ़ना है. किसने किसको मारा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को मारा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसने किसी को क्यों मारा, ऐसे क्या वजह थी कि उनके बीच के अंदर जो है युद्ध हुआ. तो मैं आइडियाज़ की स्टडी में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, फैक्ट्स मुझे नहीं पढ़ने हैं. That's enough. Mr. Braun's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay for an hour extra period today. Although I don't imagine it will do much good. I won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्लास के लिए रुकना पड़ेगा. मुझे पता उससे कोई काम तुम्हारे नहीं आना, ना ही कोई स्कूल का भला होना है. और तुम जैसे बच्चे मुझे समझ में नहीं आता स्कूल क्यों आते हो. यू आर अ डिस्ग्रेस टू द स्कूल. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. अब फिर वो कह रहा है कि मेरी इच्छा ही नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती भेजा जाता हुआ है. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. वो कह रहा है इसका मतलब तुम बहुत ungrateful हो और प्लीज़ अपने फादर को बोल दो कि तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाए.
Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that he had been bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma. अब वो भरे मन से बाहर आ रहा है, इसलिए नहीं कि उसका आज का दिन गंदा था, बल्कि ये सोच के कि उसे कल वापस इसी गंदी जगह में आना पड़ेगा। और उसकी बहुत इच्छा होती थी कि वो अपने फादर को साफ साफ कह दे मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन उसको जवाब भी पता होता था कि तुम्हें होता है ना, जैसे अपने पेरेंट्स बोलते हैं कम से कम डिग्री तो होनी चाहिए ना, तो वही डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए था। तो जब तक उसके पास डिप्लोमा नहीं होता उसको स्कूल आना ही पड़ेगा। देन ही सेज going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. ठीक है, अब वो अपने घर गया। अफकोर्स उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी पॉश एरिया के अंदर कोई अच्छा हॉस्टल उसके लिए अफोर्ड कर सकते। उसको एक स्लम एरिया होती है ना, झुग्गी झोपड़ी टाइप जो एरिया होता है, वहाँ पे उसके लिए कमरा लिया गया था, जो ऑफकोर्स डर्टी था, कम स्पेशियस था, नॉन ईयरी था, लेकिन वो सब चीज़ों को सहन करने के लिए तैयार था। उसको एक चीज़ जो बर्दाश्त नहीं होती थी, क्या होता है एक्चुअली में, जो हम बोलते हैं जो गरीब लोग होते हैं या अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल, आपको जब एजुकेशन नहीं है तो वो जाहिल नहीं होंगे। तो जो लैंड लेडी है वो अपने बच्चों को मारती रहती थी, वीकेंड्स पे उसका हस्बैंड ड्रंक शराब पी के आ जाता था और अपनी वाइफ को मारता था। तो ये जो वायलेंस होता था स्लम एरियाज़ के अंदर, वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। तो है ना, ये तो मतलब एक होता है ना कि जब बाई चांस हमारा स्कूल में हमारा मूड ऑफ हो जाता है या कुछ बुरा होता है तो घर जाके भी फील फ्रेश, बट थिंग्स डिडंट चेंज फॉर आइंस्टीन। घर जाके भी सेम कंडीशंस वर देयर, ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। But at last you have a room for your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even they are all poor students, said Albert. They are not civilized, Yuri replied. You are not to hear that one of them was killed last week in a duel, and what happens to the one who killed him? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert, all these are students. Yes, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I'll ever pass the exams and the school डिप्लोमा। अब जो है शाम को वो अपने एक फ्रेंड से मिल रहा है जिसका नाम है यूरी, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी फ्रेंड उसको कहीं ना कहीं होता पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। वो बोल रही है कि स्टूडेंट्स, आजकल के स्टूडेंट्स देखो कैसे हैं, वो किसी को मार दिया उसने किसी को, है ना, और फिर भी अथॉरिटीज़ उसकी साइड ले रहे हैं, उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे, और उसको बस ऐसे बोला कि अब से तुम्हें पंगा नहीं लेना है। तो उसको किस बात का दुख है? उसको इस बात का दुख नहीं है कि उसने किसी को जान से मार दिया है, उसे इस बात का दुख रहेगा कि अल्लाह मेरे चेहरे पे तो कोई निशान ही नहीं है जिसको मैं ऑनर लेके चलता कि मैंने ऐसे लड़ाइयाँ करी थी या ऐसा कुछ मैंने किया था। I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I'll ever pass. अब वो कह रहे हैं कि तुमको क्या करना है, तुम तो पास, अब तुम भी तो एक स्टूडेंट हो। तो कह रहा है मुझे नहीं लगता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट कब कहलाऊँगा, जब मेरे पास डिप्लोमा होगा, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी एग्ज़ाम भी पास करूँगा और मेरे पास डिप्लोमा आएगा भी। He told his cousin Elsa the same next time when she came to Munich. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. I am sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything, you just have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. तो अब उसकी जो कज़न है जो बर्लिन में रहती है वो आई है, वो उसको समझा रही है कि तुम बिल्कुल अपने एग्ज़ाम्स में पास कर लोगे, तुम टेंशन मत लो, मैंने तो तुमसे भी बहुत बेवकूफ़ बच्चे दिए हैं जो पास हो जाते हैं। इसमें ये नहीं होता कि तुम्हें सब कुछ याद रखना है, बस तुमको जो तुम्हें बताया जा रहा है उसको तुम्हें रिपीट करने की अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्षमता है तो यू विल ईजिली गो थ्रू योर एंड गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन। That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. तो एल्बर्ट क्या कह रहा है, यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं रट्टाफिकेशन के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, है ना। आई कैन नॉट रिपीट द थिंग्स दैट आर टॉट टू मी। You don't need to be good at it. Anyone who can learn like a parrot, you just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? अब वो कह रहा है कि ऐसे ज़रूरत थोड़ी है कि हमें एक तोते की तरह सब कुछ ही रटना है, और हाँ मैं तो तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम्हारे पास एक बुक होती ही होती है, और अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो।
अ बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? वो कह रहे हैं अच्छा जियोलॉजी की पढ़ रहे हो, जियोलॉजी मतलब तो पत्थरों के बारे में पढ़ रहे हो, तो कह रही है हाँ. देन वाई आर यू स्टडिंग इट? नो वी हैव हार्डली एनी. देन वाई आर यू स्टडिंग इट? बिकॉज आई लाइक इट. इजंट दैट गुड इनफ रीज़न? एल्सा साइड. अब वो कह रहा है कि अच्छा तुम्हारे सब्जेक्ट है, बोल रहा है कि नहीं फिर क्यों पढ़ रहे हो, कि बस मुझे अच्छी लगती है, कि ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि पढ़ने के लिए, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. और जो एल्सा बेचारी थोड़ी उदास हो जाती है. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. वो कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपनी पसंद की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इससे तुम्हें डिप्लोमा मिलने में आसानी नहीं होगी. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. ठीक है, उसके दो ही जो है ना उसको थोड़ा सूद करते थे, या तो वो बुक रीडिंग करता था या अपना वायलिन प्ले करता था, और वो वायलिन तब तक बजाता रहता था जब तक कि उसकी जो मकान मालकिन है वो उसको रुकने के लिए नहीं कह देती थी. That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in the house with all the kids howling. अब वो कह रहा है कि जो तुम बजा रहे हो ना, इसके जो सुर है वो मेरे दिमाग को ऐसे फाड़ देंगे, और वैसे भी इतना जो चिल्ला रहे हैं बच्चे, वो क्या कम है जो तुमने और चिल्लाना जो है वो शुरू कर दिया है. Albert was tempted to point out that most times she was who made him howl, but he decided it was better to say nothing. है ना, कई बार उसकी ऐसी इच्छा होती थी कि वो अपनी लैंडलेडी को बोले कि तुम्हारी वजह से भी उसका जो जीवन है वो नर्क बना हुआ है, चिल्लाना पड़ता है उसको, लेकिन फिर भी वो उसको लगता था कि कभी और बोलेगा, उसने कभी भी उसका सामना नहीं किया. एंड देन वॉट विल यू डू? सॉरी, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end it will turn out only I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. 6 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने फादर की मनी वेस्ट कर रहा हूँ और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ. अब यूरी कह रहा है तो फिर तुम क्या करोगे अगर यहाँ से चले जाओगे तो? आई डोंट नो. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. यूरी, you know your friendly doctors. I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. अब वो प्लानिंग कर रहा है कि अगर मैं ऐसे घर चला गया तो पापा मुझे वापस भेज देंगे. फिर वो अपनी फ्रेंड को पूछ रहा है क्या तुम किसी डॉक्टर को जाते हो? तो कह रहे हैं हाँ मैं तो बहुत डॉक्टर्स को जाती हूँ, तुम क्या उस कोर्स में जाना चाहते हो? तो बोल रहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसे किसी कोर्स में नहीं जाना चाहता हूँ, और ना ही मेरे को क्या बीमारी है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने आप को दिखा सकूँ. लेकिन अगर तुम्हारा कोई डॉक्टर फ्रेंड मेरे पेरेंट्स को इतना मतलब वो कर दे कि मेरे को जो है ना मैं कहीं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी जो है स्कूल से बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, तो शायद मेरे फादर जो है वो कन्विंस हो जाए और मुझे स्कूल से ले जाए. अब उसकी जो फ्रेंड कह रही है आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, मैं तो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकती कि एक डॉक्टर ऐसा कहेगा, है ना, कि पेशेंट जो हमारे इसको स्कूल से निकाल लो. आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स. वो कह रहा मुझे एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हो, नर्व्स के अंदर स्पेशलाइजेशन हो. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. वो कह रहा है कि अच्छा मैं कुछ स्टूडेंट्स से और बात कर लूँगा अगर उनको कुछ किसी को जानते होंगे. Will you? Oh thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet, but you will. And if I don't know if he will be willing to help you. He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. अब है ना वो आपस में डिस्कस कर रहा है, तो बोल रहा है कि तुम्हें डॉक्टर तो बाई चांस मिल भी जाएगा, लेकिन क्या वो तुम्हारी बात से सहमत होगा? तो बोलता है कि बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं रियल नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा, और फिर हंसने लग जाता है. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड. वो कह रहा है लेकिन आज तो मुझे खुश लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है. तो कह रहा है मैं 2 दिन स्कूल जाऊँगा, इतने में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो अपने आप ही हो जाएगा. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Oh good. When can I see him? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Wheel, he is a specialist in nervous troubles, asked Albert. Not exactly, Yuri admitted.
As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. You knew him as a student then. I have known Ernest for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool, he warned Albert. What do you mean? Don't try to pull the wool over your ears, that's all. Be frank with him, but don't pretend you have got to what you haven't. Not that you had deceive anyone, Yuri added. You are the world's worst liar. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived of his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. तो यूरी उसको कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर फाइंड कर लिया है। तो वो कह रहा है कि अच्छा वो स्पेशलिस्ट है। तो यूरी कह रहा है एक्चुअली वो स्पेशलिस्ट तो नहीं है, उसने तो पिछले हफ्ते ही उसकी जो डॉक्टरी है वो पूरी हुई है और शायद तुम उसके पहले पेशेंट होगे जिसको वो देखेगा। लेकिन तुम उससे झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है और तुम एक बहुत बड़े वो होता है ना लायर एक तो होता है ना झूठा, बहुत आसानी से झूठ बोल देता है। ये अच्छा झूठा नहीं है, मतलब अच्छे से झूठ नहीं बोल सकता है। इसका जो झूठ है बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब वो पूरा दिन इतनी टेंशन में कि मैं डॉक्टर से क्या बात करूँगा, क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा, इतना वो सोचता है कि उसको सच में ही जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो थोड़ा सा हो जाता है। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Veal, he began. अब वो शुरू कर रहा है कि मुझे exactly नहीं पता है कि मैं कैसे अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊं कि मैं क्या ट्रबल्स जो है वो फेस कर रहा हूँ। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. वो कह रहा है तुमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यूरी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you mustn't go back to school. वो कह रहा है उसने मुझे कह दिया कि मुझे ये सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि तुम्हें स्कूल ना भेजें। Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble. Now you will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure that you are in a nervous state about the school, but I haven't told you anything about you, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Because you wouldn't have come to see me if you hadn't been pretty close to nervous breakdown. That's why. Now the doctor said briskly, if I certify that you have a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? I will go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. And what will you do there? I will try to get into an Italian college or institute. How can you without a diploma? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach in school and a bit more, he added when Dr. Vale looked doubtful. Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone much good by staying here. How long will you do? Like me to stay, you should stay away from school. Would 6 months be all right? This is very kind of you. वो डॉक्टर पूछ रहा है कि अच्छा जैसा तुम बोल रहे हो वैसा मैं कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? तो बोल रहा है मैं मिलान चला जाऊंगा जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। कि फिर क्या करोगे? तो कह रहा है फिर मैं वहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। तो कह रहा है कैसे ले लोगे तुम वहाँ के कॉलेज में एडमिशन बिना डिप्लोमा के? वो तो डिप्लोमा मांगेंगे। तो वो कह रहा है कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है और मैं मेरे मैथ्स के टीचर को बोलूँगा कि वो मुझे कुछ ऐसा दे दे जिससे मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाए। तो वो डॉक्टर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है उसको कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बोलता है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अच्छा मैं 6 महीने का लिख दूँ कि 6 महीने तुम्हें स्कूल से दूर रहना है, तो तुम सेटिस्फाइड हो? तो वो तो बहुत खुश हो जाता है इंस्टेंट कि आपका बहुत धन्यवाद होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। हाउ मच? वो उससे पूछ रहा है कितने पैसे? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। वो कह रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं, तुम अगर चाहो तो तुम यूरी को अपने साथ जो है खाने पे लेके जा सकते हो, मेरे भाई अच्छा फ्रेंड और तुम्हारा भी। Isn't wonderful, he said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. अब वो बहुत खुश है और वो अपना जो सर्टिफिकेट जो उसको दिया है नर्वस ब्रेकडाउन का डॉक्टर ने वो यूरी को दिखा रहा है और बोल रहा है कितना अच्छा है। अब यूरी कह रहा है कि 6 महीने बहुत है ना तुम्हारे लिए। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। वो कह रहा है कि 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, तुम दूसरी जगह जाके सोच सकते हो, देख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं होता वर्स्ट से वर्स्ट है तो तुम 6 महीने बाद कम से कम तुम स्कूल तो वापस आ सकते हो ना। इसमें तुम कहीं स्कूल छोड़ नहीं रहे हो, यू आर गोइंग बिकॉज यू आर नॉट वेल।
I'll never go back to that place, Albert assured. I'm going to take the certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. वो बोल रहा है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा और मैं कल ये हेड मास्टर्स को दिखा दूँगा और वो इसका ख़त्म हो जाएगा बस. Don't forget to get the reference in writing from your mathematics teacher in first unit. Reminded हम यूरी उसको कह रही है कि तुम पहले लेकिन अपने मैथमेटिक्स टीचर से लिखवा लेना, वो मत भूल जाना. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट अ रेफरेंस ही वांटेड. अब उनका जो मैथ्स का टीचर है वो मिस्टर कोच, और जो चीज़ उसको चाहिए थी एल्बर्ट को वो उसने उसको आराम से दे दी. इफ़ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर दैन प्रॉब्ली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. अब टीचर उसको क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसमें ऐसा कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ तुम इतने काबिल बन जाओगे कि तुम मुझे पढ़ा दो, तो क्या ये सही होगा? दैट सेइंग टू मच सर. अब एल्बर्ट कह रहे हैं ये तो सर बहुत ज़्यादा हो गया मेरे बारे में, इतना मैं क्या हूँ, इतने तो बहुत ज़्यादा हो गया. इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली. वो कह रहा है कि लेकिन ये सच्चाई है, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस नोट लिख देता हूँ. इफ वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. और उन्होंने लिखा कि ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये किसी भी हायर इंस्टीट्यूट के अंदर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर सकता है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग टाइम इन माई क्लास, ही सेड. वो कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम जा रहे हो, हालांकि मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरी क्लास में हमेशा अपना टाइम वेस्ट ही किया है. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट, बट नाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर. अब वो कह रहा है कि सर शायद आप ही की एक क्लास है जहाँ पे मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको पता है मैं छोड़ रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी दिस रेफरेंस अदरवाइज. वो कह रहा है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, वरना तुम मुझसे ये रेफरेंस नहीं लिखवाते. आई थॉट यूड वंडर. वो कह रहा है मुझे लगा कि आप ऐसे सवाल जवाब करोगे कि स्कूल क्यों छोड़ रहे हो. सो देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई नो यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए तैयार था, जब तक तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तुम स्कूल तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा. Albert was puzzled. What did the teacher mean? As soon as he soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. Well, it saves me from trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. I am not going to punish you, the head teacher said to Albert's surprise. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. Leave school now, repeated Albert dazed. That's what I said. You mean, said Albert, I am to be expelled. You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go to your own accord and then question won't rise. But, said Albert, what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. I was going to leave anyway, he said. Then we are in agreement at least, Einstein. The head said. For a moment, Elvis was tempted to tell that the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high, and stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He said come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. I think, I hope you will be happier there. ठीक है. अब वो मैथ्स के टीचर के साथ जब बात कर रहा है तो हेड मिस्ट्रेस जो है उसको जो हेड है वो उसको बुलाता है. अब आइंस्टीन को लगता है कि ज़रूर पनिशमेंट वगैरह के लिए बुला रहा होगा. तो जब वो अंदर जाता तो हेडमास्टर बोलता है कि हमने तुमको बहुत झेल लिया, अब हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते. जब तुम क्लास में होते हो तो तुम एकदम रिबेल करते हो, क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, लिखना नहीं चाहते हो, और तो तुम्हारी वजह से बाकी स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है. तो वो बोल रहे हैं इसका मतलब आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो. तो ऑथर बोलता है तुम ऐसे ही सोच लो कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रही हूँ. तो बेचारे आइंस्टीन जो है उसके लिए क्या हो जाता है, वो ज़बरदस्ती इतना मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाया था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. और वो बहुत खुशी जो है स्कूल से
निकल जाता है, जो हेडमिस्टर बोलते गेट बंद करके जाना, लेकिन वो उसके बात पे ध्यान नहीं देता है और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। उन 5 सालों को वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता है। म्यूनिक के अंदर उसका एक ही फ्रेंड था जो था यूरी, और जो उसकी कज़न थी एल्सा, वो पहले ही बर्लिन जा चुकी थी। सो देयर वाज नो वन देयर लेफ्ट देयर जिसको वो गुड बाय कह सके। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ही वेंट टू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, and because of him we have so many new inventions and everything, and he is the name always to be remembered and will always be there. So the moral of the education, क्या कहें एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आइंस्टीन ने जो है कितने सालों पहले जो एजुकेशन के बारे में, और शायद गवर्नमेंट्स को ये अब समझ में आ रहा है और अब नई शिक्षा नीति लागू हो रही है जहाँ पे आइडियाज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी इंस्टेड ऑफ लर्निंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बाय हार्ट. So I hope we'll have many more Einsteins now, and students will love coming to school instead of hating it like Einstein. So have a good day all of you.